Very good morning, students. Let's start the today's session. Before starting this session, let me know what we have done in the last lab. Practical too, sir. It completed Yes, sir. Nearly about बस एक all लास्ट वाला four, छूटा था. all नो सर, four tables. ट्रांजैक्शन वाला छूटा था सर. Transaction wala. यस सर, Okay. लोन तक हो गया था. Okay. Have we completed the two care function? It's remaining fifth query of the loan table. I think it's remaining in your page. यस सर. Okay. Good morning, sir. Yes. सर मेरा एक लैब छूट गया है सर. क्या? हेलो सर. हेलो. सर मेरा प्रीवियस इससे पहले वाला लैब हुआ था उसमें सर नेटवर्क. हेलो सर. हाँ हाँ. हेलो. यस ओम प्रकाश. बोले सर इससे प्रीवियस लैब में सर मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गए थे सर, तो मतलब लैब नहीं कर पाए थे सर, तो मेरा छूट गया था. तो बाकी का सब कुछ वीडियो देख के कवर कर लिया या फिर पेंडिंग है? तो वीडियो देख पेंडिंग के है तो कर सर, लेना कवर तो चाहिए नहीं ना. हो पा रहा सर. ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा. Okay, let's start with that thing. In a practical 2, uh, in a loan table, we have a fifth query. Display only those records where loan holder taken a loan in a month of January. I think it's a pending. So here, whenever we want to fetch any particular data from the date, for example, if you want to match the month or day or year, at that time you can use this to care function. It's not like that loan date is equals to Jan, because it's a combination of DDMM YY or DDMON YY, any date format. So here we have a function to care function, to underscore care function, which will convert your date into a string, and out of that string we will match the value. So this front part is clear. Select star from loan where. Now let's start with the to care. To care function will convert the loan date. Which date? It means we have to specify the column name here. So here our column name is loan underscore date. So you need to specify the column date. Out of that day column, it will extract the specific format, whatever you have written here. Right now I have written MON. It means out of this column loan date, it will extract only month, MON, whose value is equals to JAN. It means it will find the matching. So first task is extract the format. It means either MOM, either MON, either DD or whatever, and then it will match the value and give you the output. Okay, let me copy this thing to you so you can run it. And again I will explain this thing in a different here. MON, it means small m, small o, small n is equals to small jan. It should be properly matched with the format. Here, if I am writing here mm, then is equals to 01. So first of all, go through this one, run this syntax.
Then I will explain in a different thing, that is MM. It means we need to write a month year. Are you getting or not? Hello, am I audible? सर स्क्रीन नहीं Yes, दिख रहा है yes, सर। sir. स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? यस सर। स्क्रीन को अभी नहीं देखना है, आप चैट में देखो। Don't see the screen, see your chat. Select star from lawn where to care function. कॉलम नेम हमें देना है जिसमें डेट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से हमें एक्सट्रैक्ट क्या करना है, ओनली MON that you need to write and then is equals to the value which we want to display. If I say display Yes, sir, all, हो गया. okay, हो गया. Then I am pasting another similar query like this. Instead of MON, I am writing MM. It means month in a digits. So at that time you need to write 01. Sir, Yes, why are you using a loan date? because in our table column name is loan date. See your loan table. Is there any other date column जिसका सर फॉर्मेट डेट है MON ऐसा? सर, एक्सक्यूज मी सर। Okay, No, sir. sir, only one. या It जिस is कॉलम working, से sir. हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो कॉलम नेम लिखनी है, ठीक है। यस सर, सपोज यस। आई एम राइटिंग MON कैपिटल, M capital, ON capital. I am pasting the third one. Will it work or not? Select start from loan where नो to सर। care loan date. Why not? Capital M, small o, and is equals to small j, small a, and small n. Definitely it will not work because our format is capital MON. So instead of small jen, we have to write capital J, small a, small n. Clear? So format must be matched with your common format. Clear? Now write down the answer of my question. Question is that display only those records where loan holder taken a loan on date 18. Display only those records where loan holder taken a loan on date 18. 18 तारीख पे जिसने लोन ली है उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाओ। Sumant, are you there? Yeah. Select star from loan where to care loan date DD is equals to 18. Yeah, correct. Sumant, are you there? Gaurav and Saurabh? Yes, sir. Yeah, you are there. Yes, sir. Gaurav Yes, is sir. there. Yeah, Sumant? Yes. Sumant? Yes, sir. Yeah, good morning. What about Abhishek Tiwari? Abhishek? Yes, sir. Yeah, so all of you are present. Good. Are you getting? Is there any doubt? No, sir. Okay, so this one is the fifth one. Now you tell me from where I have to start, from installment or transaction. Which table is remaining? Transaction, sir. Only Sir, only transaction. transactions, sir. Yes. Okay, good. Let's start with the transaction first query. So already we have inserted all this data. Next, second,
insert any duplicate value and display all the records without any duplicate. So first of all, you insert any duplicate row. You insert Already any inserted, sir. already inserted. Yes, Okay, sir. okay. Then let me paste the answer and I explain it. Okay, first of all, in your database you will find the two duplicate rows. It's a permanent. It is permanent stored in your database. Now, if you want to display only unique rows, not duplicate rows, only display, then you can use the distinct keyword. You can see the chat distinct keyword. Yes, sir. Select distinct, then star from transaction. So distinct will give you a unique value, but make sure distinct will give you only it will display only the unique rows, but डेटाबेस में तो डुप्लीकेट होगी, डेटाबेस में से डुप्लीकेट नहीं हट सकती, डेटाबेस में हटानी है तो डिलीट करना पड़ेगा. If we delete duplicate row, then it will be delete both rows. Clear? सर इसमें स्टार लिखना जरूरी है? स्टार मींस कॉलम है ना. तो इसमें जब सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब ऑल कॉलम्स, हमने जब पहले प्रैक्टिकल में किया वो. Clear? So this one is your second query. Now go for the third one, or you can run these three. Go for the third one and paste your answer. Select all the records in a descending order, account number wise. All of you listen. Today I have generated two assignments in a DBMS, practical 1 and practical 2. Sample format is given in a practical 1. So according to that format, you need to copy paste your practical 1 and then upload it, and same like that practical 2 and so on. Clear? Deadline is सर given. Yes. प्रैक्टिकल 2 में पीडीएफ डॉक्यूमेंट सर नहीं है, अटैच फाइल नहीं है. कमेंट मत देखो क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में. रीड किया आपने? यस सर. वो क्या लिखा है? फर्स्ट एक मिनट सर, फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑन किए थे तो उसमें अटैच फाइल आ रहा था. प्रैक्टिकल 2 की इंस्ट्रक्शन जो है वो रीड करो. मैं ऐसा बोल रहा हूँ अभिषेक तिवारी. ओके सर. क्या लिखा डियर है? स्टूडेंट, काइंडली अपलोड प्रैक्टिकल 2 सेम फॉर्मेट एज गिवन इन प्रैक्टिकल 1. उसमें अटैच करने की जरूरत है नहीं है ना? ओके. नहीं, एक ही में सर सब कर देंगे. एक ही में नहीं करना है तो प्रैक्टिकल 2 मैंने अलग से क्यों दिया? सभी फाइल आपको अलग अलग करनी है, इसलिए तो असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 दिए है मैंने. तो जैसे सर न्यू प्रैक्टिकल 1 का खोल रहे हैं लो, तो सर इसमें प्रैक्टिकल फॉर्मेट डॉक एक्स है, लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर कैसे अटैच करेंगे लो इसमें? अरे भगवान, कॉपी. आप इंजीनियर कैसे बनोगे? अभी से ब्रैकेट में लिखा है सेम फॉर्मेट,
तो प्रैक्टिकल 1 की जो फॉर्मेट है ऐसी फॉर्मेट प्रैक्टिकल 2 की खुद से बनाने की है। सो कॉमन सेंस इट्स आया समझ में अब? क्या अभी भी नहीं आया अभिषेक? आ गया सर। हाँ, यूज योर ब्रेन अभिषेक। ओके, पेस्ट योर नेक्स्ट क्वेरी। अभी तक किसी ने नहीं किया, सिर्फ अभिषेक ने की है, बाकी सब कहाँ गए? Is there any problem? No, sir. अभिषेक का आंसर भी गलत है। समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। या Yes, फिर sir. कुछ क्या क्या सुमन? Order by. सर एक्सप्लेन सर। तो लास्ट लैब में नहीं था तू क्या? सर एक्सप्लेन कर दीजिए सर। क्या? नहीं सर। तू नहीं, नो सर। सुमन। सुमन था लास्ट लैब में। सर हाँ सर यहाँ पे ऑर्डर बाय अकाउंट नंबर डिस्क होगा सर। हाँ, तो देखो, हाँ तो डिसेंडिंग सही ऑर्डर है ना। मतलब अकाउंट, या सर अकाउंट नंबर के हिसाब से सर उसको डिसेंडिंग करा रहे हैं। हाँ तो तूने आंसर गलत लिखा है, मैं क्या बोल वो रहा सर हूँ। मोबाइल से करेक्ट कर, टाइप कर रहे हैं तो। करेक्ट करके फिर ओके सर। दूसरी बार पेस्ट करो ना। कॉमन सेंस। अभिषेक तिवारी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग this much of level from you guys. At least C-batch students are little bit good compared to other batches. So I am not expecting this type of silly questions from you guys. सुमंत, ऑर्डर बाय का मतलब अब जिससे आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है। सो वेयर क्लोज के बाद, यस सौरभ। सर ऑर्डर बाय जैसे अकाउंट नंबर है सर उसमें हाँ डिसेंडिंग का, तो उसमें हम हाँ सर ट्रांजैक्शन डेट भी डाल सकते हैं सर। हाँ, तो डाल सकते हैं ना। उस टाइम पे ही मैंने सिखाया था। यस दो एग्जाम्पल लिए थे। आप देखते ही यस नहीं हो। आप पहली बात तो, देख आप कुछ देखें लोग सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ सर, एक वीक हो गया। एक वीक हो गया तो क्या, अभी पूरा सर थोड़ा सा पूरे कंफ्यूजन हो सेमेस्टर में गया सर। 1 महीने का रीडिंग वेकेशन होगा तो आप ये सब भूल जाएंगे क्या? नहीं नहीं सर, बस वही थोड़ा सा। Select start from transaction, order by account number descending. That's the correct answer. So order by ascending order, descending order. उसके बाद column name, जिससे आपको ascending या फिर descending करना है, वो column name डाल देनी है। फिर डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग कीवर्ड लिखना है। असेंडिंग करना है तो कुछ भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। And you check the e-content regularly. I have uploaded the common format for that. ये क्या? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन, ऑर्डर बाय सर गलती एएमटी। से हो गया सर, हैंग कर गया। ऑर्डर बाय एएमटी व्हाट? नॉट एएमटी, अकाउंट डिस्क्राइब। एटलीस्ट आपकी बैच में तो मोस्ट ऑफ 90% स्टूडेंट्स ऐसे ब्रिलियंट है कि जो इशारों में ही समझ जाते हैं। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टाइप ऑफ you guys. So do it your best. Go for the next. Select amount, transdate. It's transdate or tr date, whatever your column name is. Yeah. ट्रांजैक्शन डेट सर। Again, Abhishek. Transdate or tr date, not transaction date. पूरा तो नाम है ही नहीं कॉलम में। कॉलम का नाम tr date है या फिर transaction date है, whatever, I don't know. You have to keep that column name according to your table column name, not my name.
आप आज इतना क्यों स्लो जा रहे हो सब लोग? हर एक लैब में तो आप सर अच्छे आज क्या हुआ? सर कल लाइट खराब हो गया था, तो आज सर लैपटॉप डिस्चार्ज है, इसी के कारण सर। आपका ब्रेन डिस्चार्ज है या फिर लैपटॉप? मैं ब्रेन की बात कर रहा हूँ। नो सर, ब्रेन फास्ट ही है। तो फिर तो इतना स्लो क्यों आंसर? आई एम नॉट गेटिंग आंसर ऑन टाइम. Only one or इसमें two सर फिर students are giving the answer on time. इसमें फिर बैग जाके सर देखना पड़ा टेबल क्या वगैरह। यार, इतना तो याद रखना चाहिए ना, क्योंकि जीटीयू एग्जाम में they will ask this same question in 7 marks. Then it's a ओके loss सर। of 7 marks. आप ये इतना अभी ये सिंटेक्स याद नहीं कर पा रहे हो, तो जीटीयू में तो 7 मार्क्स आपके कट ही जाने वाले हैं ना। यस सौरभ, इट्स करेक्ट। अरमान करेक्ट। What about Gaurav? Just 1 minute, sir. Just 1 minute. I'm Okay. typing in mobile, sir. Gaurav, I saw your initiative. It's a good initiative that WhatsApp status. Put one C question, after DBMS question, whatever. That's a good. Sir, some of students are giving me reply, but not too much. What? क्या बोल रहे हो? कुछ लड़के सर रिप्लाई कर रहे हैं कोई पॉजिटिव। दिक्कत नहीं है, जिसको यस सर, जिसको जो करना है वो करे, अपने से मतलब रखना है। यस सर, थैंक यू। Those who are really interested, they will interact with you, या फिर खुद से भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप पे डिपेंड रहेंगे या फिर आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, इट्स ओके। Next, go for the next one. Six, create another table. Timestamp. Read the question properly. I want a correct answer in the first attempt. Create another table. Timestamp by change the column name account SEC number to account number. I said read the question properly. Okay, fifth one. Fifth one is remaining. Okay, sorry. Create another table, transaction temp from this table. So answer is correct with it. Yes. Fifth one is remaining. Okay. Okay, go for the next one. Now read the question properly.
Sixth, read the question properly and type your answer. Create the another table timestamp by change the column name SCC number to account number. हेलो सर, 5th नंबर में एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? सर वहाँ पे टेबल लिखाएगा या नहीं लिखाएगा? क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन टेम्प जहाँ पे तो नहीं दिखा है ना, बट ऑब्वियस है। देखना है तो आपको पहले नहीं, हाँ वो पूरा डेटा तो कॉपी हो ही जाएगा। अगर देखना है तो आप ऐसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरस्कोर टेम्प कर सकते हैं। I want correct answer in the first attempt for this sixth one. Question is little bit tricky. Syntax is not new for you. It is already we have discussed in the previous lab. I got one answer from Udit. Create table timestamp account number tier date ECC. Okay. Any other students? Let's wait for other answer, then I will share the correct answer. Gaurav is not getting the question. What about others? 1 minute सर। Om Prakash is also not getting the question. Saurabh, no. Okay. The answer of Udit is absolutely correct. Excellent, good work. Now, Udit, can you explain this one? Yes, sir. Okay, explain it. Listen carefully, Sir. everyone. Yeah. In this methodology we created a new table using the already available schema of table transaction, sir. Okay. इसमें सारे डेटा टाइप सेम है सर, लेकिन अगर किसी कॉलम का नाम अपडेट करना है तो कॉलम का नाम अपडेट करने के लिए सारे कॉलम को मेंशन करना जरूरी है सर। Okay. पर अगर किसी कॉलम का नाम अपडेट नहीं करते तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे create table timestamp as select star from transaction, sir. Okay, good. अच्छा है। सर उसमें न्यू न्यू कीवर्ड कैसे आएगा? न्यू का नाम लिखना ही, न्यू ऐसे लिखना ही नहीं है। क्रिएट टेबल सर वो ट्रांजैक्शन। आप बताए थे ऐसे क्रिएट न्यू टेबल नेम, सर वो क्वेरी में लिखे थे ना, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया होगा। नहीं, क्वेरी में नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना आप है। वो जनरल यस सिंटेक्स सर, वो थी। प्रैक्टिकल में नहीं लिखना है, वो जनरल हाँ, सिंटेक्स में आप जनरल। बताए थे, इसीलिए हाँ कंफ्यूजन हो गया। हाँ, जनरल सिंटेक्स को तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ना। मैं ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्रिएट टेबल ट्रांजैक्शन टेम्प इनटू ब्रैकेट यू हैव टू मेंशन if
if you want to mention the new name of the column, then you can. So जैसे युदित ने new name account number दे दिया है, so that's the correct, and remaining all same as it is. As select all the columns name from transaction, that is the correct one. क्लियर? यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ अकाउंट नंबर की कॉलम ही डिस्प्ले करवानी है, क्रिएट टेबल में करनी है, पूरी करनी है, लेकिन सब में से out of all columns you have to change the name of only one column, that is account number. Clear? Now is there any doubt? Otherwise perform it and go for the next. Hey Bhagwan, Sumant, you need to take care about the syntaxes. You need to refer all these previous concept. एग्जाम में मैं नहीं होने वाला आपको करेक्ट करने के लिए, so आपको प्रैक्टिस करनी है. विदाउट प्रैक्टिस यू विल डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन एंड अगेन. इसलिए मैंने आपको सभी सिंटेक्स लिखवाई थी, आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा. रिफर इट. कुछ भी गलत ही है. रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. एग्जाम में आप ऐसे जल्दबाजी में करेंगे तो आप डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द मार्क्स. This one is the easiest question. Why you are taking this much time? What about Uddeep, Saurabh, Pankaj Kumar, Abhishek Tiwari? Today anything has happened with you guys? Why you are not giving correct answer? Because in other batch where I cannot expect, they are giving mostly 50 to 60% correct answer, and today I am expecting that in a C base I can get the 90% or 95% correct answer, but today I am giving I am getting only 20% correct answer. Is there any problem? Then you can share it with me. हे भगवान, कब क्या करे अब सबका. Okay, only Udit is correct. It is clearly mentioned delete a table. So whenever we want to delete a table, at that time use the drop syntax. Drop table, table name. That's it.
आप डिलीट करेंगे, डिलीट फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेम, this syntax will delete only old data, not entire table. Schema will remain present, columns will remain present, only data will be deleted. But drop table transaction temp, it will delete all schema as well as all data. And Abhishek Tiwari, you have mentioned alter table transaction drop transaction temp. Alter keyword column को drop करने के लिए यूज होगा. पता नहीं आज क्या कर रहे हो आप सब लोग, नाश्ता किए कि नहीं किए हो? Okay, go for the next one. Suman, it's a wrong answer. It's a wrong. Gaurav, have you checked it? Apex पे रन करवा के आप लिख रहे हो आंसर. First you should run it on Apex and then paste your answer. It will take 1 or 2 minutes time. The answer of Sumant Kumar is correct. Rename transaction to trans. Be confident, guys. I'm checking your confidence. Whether you are changing your answer or not. Rename old table name to new table name. That's it. सर बट क्या क्वेरी में तो टेबल का इस्तेमाल किया गया सर. क्वेरी में साफ साफ लिखा रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू तो टेबल नेम. क्वेरी में तो जनरल इंग्लिश ही लिखा है ना, उसका मतलब थोड़ी ना है कि हमारी सिंटेक्स हम चेंज कर दें. सर तो You run सिंटेक्स में it ना, टेबल तो यूज कर रहे हैं सर. ऐसा थोड़ी ना है. हमारी सिंटेक्स में टेबल का, सिंटेक्स में टेबल ही नहीं है. एक एक काम करो, मिनट आप सर पहले ये बताना. रन, आप ये रन करो क्वेरी एपेक्स में. रन किए सर, रीनेम हो गया इसलिए तो बता रहे हैं. Okay, let me check whether it is supported in this or not. Let me check it. Invalid table name, rename table transaction. I copy your query, rename. I copy your query, rename table transaction to trans. It's an invalid name. सर तो If I टेबल का यूज remove, नहीं करेंगे. नहीं, if I remove rename transaction to trans, it will work. Statement proceed. एक मिनट सर, एक मिनट प्लीज. आपने रन क्या किया पता नहीं. उदित टेबल नहीं होगा, देख लो. हाँ नहीं लिखा हुआ टेबल है. कीवर्ड तो नहीं होगा ना यार, क्वेश्चन में दिया सर वही तो दिखा रहा हूँ. सर एम आई या प्रेजेंटेबल, एम आई या प्रेजेंटिंग. या सर रीनेम टेबल ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम. सर काम रीनेम टेबल्स टू स्टूडेंट रिकॉर्ड. वो गलत है. वो टेबल हटा दो. टेबल हटा दे सर. हाँ, टेबल कीवर्ड हटा दो. श्योर सर. सर आप बताए थे इसीलिए. मैंने करेक्ट भी करवाया था. करेक्ट करवाए थे. हाँ, मैंने याद है, मुझे करेक्ट करवाया था. क्योंकि वो जनरल सिंटेक्स में हम ऐसे बोलते हैं ना, रीनेम ओल्ड टेबल टू न्यू टेबल. तो मैंने कीवर्ड टेबल ऐसे जनरल सिंटेक्स में टाइप कर दिया था, फिर आप लोगों ने ऐसे ही टाइप कर दिया, फिर मैंने करेक्ट करवाया था.
Okay, rename. Yes, now it's correct, Gaurav. Rename transaction to trans. तो आप पहले एपेक्स में रन क्यों नहीं करते हो? तो आपको पता चल जाएगा विल इट वर्क और नॉट. सर रन रन है, रन। किए, फाइंड टेबल्स में दिखाया भी है, तो क्यों सर रीनेम हो गया इसीलिए बता रहे। नहीं हुआ ना यार? आपकी कॉपी मैंने की उदित और मैंने एपेक्स में पेस्ट किया तो नहीं हुआ. जैसे टेबल कीवर्ड हटा दिया तो रन हो गया. आपको आपकी कैसे हो गई वो मुझे नहीं पता चल रहा है. पता नहीं सर, नहीं होना कहीं चाहिए. होगा ही नहीं. आपने टेबल की वाला वो किया ही नहीं होगा. सर नहीं टेबल नहीं नहीं लिखा हुआ, हुआ सर। हाँ टेबल कीवर्ड पे नहीं हुआ था। ग्लिच होगा सर, नहीं, ग्लिच होगा। टेबल लिखने में नहीं होगा। नहीं होगा. मेरी भी एरर ही आएगी. या टेबल नेम का मतलब जनरल हो गया सर कि जिस टेबल का नाम है वो डालना है, ट्रांजेक्शन है टेबल का नाम। हाँ, ओल्ड नेम टू न्यू यस, नेम. यस इतना सर। ही. Okay, go for the next one. See a query next. Next query is which one is next? Display account number where type of transaction is D or something else? नाइन्थ नंबर है सर। ये 9th नंबर ही है ना? only create a structure of table transaction one from table transaction। वो मैंने करवाया था कि बाकी है? नल वाला. सर करवाए थे सर, अच्छा, नल वाला नहीं करवाए थे। नल वाला नहीं करवाया थे. ओके ओके. तो फिर उसमें भी बाकी रहेगा ना 10. लोन टेबल में 10th वन इज रिमेनिंग ना? Sorry, in installment. In installment table, 10th one is remaining. Only create a structure of table installment 1 from a table installment. Okay. Let me copy this query and you can see this thing in a chat. Okay. Concentrate on a chat. I have pasted the answer of 10th query of installment 1. So based on this, you can perform this 9th one in a transaction. Okay, let me explain this thing. Create table installment 1 as select star from installment. Up to this, you are clear because it's a syntax of creating a table from existing table. Clear? But where loan number is equals to null. What is the meaning of this?
For example, if I am writing where loan number is equals to L001, it means it will create the new table and having only one row. Clear? But whenever I am writing loan number is equals to null, it means that row is not exist. It means वो blank ही है पूरा. तो हमें क्या करना एम्प्टी है? वैल्यू सर हो जाएगा। हाँ, एम्प्टी वैल्यू। तो एम्प्टी वैल्यू करेंगे तो क्या होगा? एक भी रो नहीं आएगी, लेकिन कॉलम सब कुछ कॉपी हो जाएगी इंस्टॉलमेंट 1 में। तो कॉपी हो गई तो वो क्या हुआ? सिर्फ स्ट्रक्चर ही हो गया। तो उसको हम बोलेंगे ओनली क्रिएट अ स्ट्रक्चर। क्लियर? सर रो भी आएगा लेकिन उसमें सर डैश डैश रो करके को कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि नल वाली रो तो है ही नहीं हमारे पास। अगर रो है नहीं तो आएगी नहीं, सिर्फ कॉपी क्या होगा? ओनली कॉलम्स। क्लियर? So for the transaction table, you perform this thing. Create table transaction 1 is select star from transaction Abhishek Tiwari. You need to write a where loan number is equals to null. Is there a column loan number in a transaction table? Is there any name of loan number is equals to this? No. So instead of okay, just wait a minute. Let me share this thing so you can get the idea. Yeah. Here you can see we have account number, translate amount, type of TR, and mode of pay. We have a 5 rows, but as per the question, we have to create the only structure. Structure means no data, only columns. Only columns. So A001 नहीं आना चाहिए, A002 नहीं आना चाहिए, A003 नहीं आना चाहिए, A005 नहीं आना चाहिए, लेकिन इस दर A006 नहीं है. So I can write as a null. So where SCC number is equals to null. It means ये 6th row existing ही नहीं है, वो पूरी कॉपी होगी. It means वो ब्लैंक रहेगी, एम्प्टी रहेगी, नल रहेगी, और कॉलम सब कुछ डिस्प्ले हो जाएगी. क्लियर? सर इस टेबल में लोन नंबर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए तो मैंने बोला ना उदित में वो आपको कॉलम नेम लिखनी है. उदित और गौरव कॉलम नेम लिखनी है. इंस्टॉलमेंट टेबल में देखा आप देख सकते हो, इंस्टॉलमेंट टेबल का मैंने एग्जांपल दिया है, तो इसमें लोन नंबर है. सो यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर टेबल. ट्रांजैक्शन में लोन नंबर नहीं है. मैंने आपको एग्जांपल किसका दिया? इंस्टॉलमेंट का. इसलिए मैंने यहाँ पे लोन नंबर इज इक्वल टू नल लिया है. ठीक है? यहाँ पे आप अकाउंट नंबर ले सकते हो या फिर कोई भी कॉलम ले सकते हो. वेयर ट्रांसलेट इज इक्वल्स टू नल, वेयर अमाउंट इज इक्वल्स टू नल, वेयर टाइप ऑफ टीआर इज इक्वल्स टू नल, एनी वन ऑफ दिस. क्लियर? कोई एक भी ले सकते हो. समझ में आ रहा है? इज देयर एनी यस डाउट? सर। एनी अदर स्टूडेंट्स? सर अगर सिंगल रो में चेंज कराना होगा तो क्या जैसे मैं ऐसे सिंगल तो रो पूरा में? जैसे मैं ऐसे अगर करेंगे तो पूरा जो रो है उसमें नल वैल्यू हो जाएगा, उस कॉलम के पूरे रो में. नल का मतलब एम्प्टी हुआ ना. नल एम्प्टी हो जाएगा सर. हाँ, तो लेकिन सिर्फ अगर हमें स्ट्रक्चर ही करना है ना. तो वो तो पूरी. इंडिविजुअल रो में हे भगवान, तो आज आज आप सब लोगों का दिमाग क्यों नहीं चल रहा है? मुझे आज के लिए दिक्कत है. सभी लैब में चलता है, आज क्यों नहीं चलता है? क्योंकि प्रैक्टिकल 1 खत्म कर दिया हमने. उसमें देखा था वेयर करके जो हम लिख रहे हैं वो पूरी रो देगा, फिल्टर आउट करेगा. इफ वी आर राइटिंग वेयर पटेल नेम इज इक्वल टू पटेल जिगर, इट मींस इट विल सिलेक्ट एंटायर रो. तो यहाँ पे लोन नंबर इज इक्वल टू नल लिया है, तो वो पूरी एंटायर रो लेगी. ठीक है? आया समझ में आप? यस सर. हाँ, ओके.
क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि नल एग्जिस्ट ही नहीं है टेबल में, तो वो टेबल वो जो रोज है जो एग्जिस्ट ही नहीं है उसको हमने कॉपी करवा दिया, तो जो कॉपी टेबल है उसमें भी नया टेबल जो बना उसमें भी वो नल ही दिखेगा पूरा, सिर्फ दिखेगा क्या, कॉलम्स। अगर उसको आपको देखना है तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन 1 करेंगे तो नो डेटा फाउंड ऐसा आएगा, लेकिन टेबल्स की स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ वो देखने के लिए आप यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द डिस्क्राइब कीवर्ड, डिस्क्राइब ट्रांजेक्शन 1, देन यू विल फाइंड द all columns with data types, or you can click on find a table also. Okay, go for the last one, last query of this practical 2. आप जो प्रीवियस वाली जो क्वेरी है उसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेर अमाउंट इज इक्वल्स टू नल, तो पूरी वो रो ही सिलेक्ट हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग टू पूरा टेबल एम्प्टी रहेगा, सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्रिएट होगा। सिलेक्ट अकाउंट नंबर फ्रॉम ट्रांस वेर टाइप ऑफ क्रिया इज इक्वल्स टू डी, okay, because we have renamed the transaction table into a trans. Last one. Abhishek Tiwari, you are mixing two concepts, so it is not valid for this question. For particular this table, you will get the answer, but this answer is inappropriate for the entire concept. Our next concept is like predicate. So Abhishek Tiwari is going to explain this thing. So wish you all the best, Abhishek. Yes, sir. Okay. If you have any query regarding practical 2, then you can ask me. Again, I am repeating that instruction. I have created two assignment in a DPMS, practical 1 and practical 2. In a practical 1, you have to upload only practical 1. In a practical 2, you have to upload the practical 2 file in a PDF format only. Here, okay, let's start with the third one. So before starting a third one, I want to explain one concept, that is like predicate.
then we can move ahead. So I request Abhishek Tiwari, can if you are able to teach this like predicate to all, then it's very good. यस सर। सर लाइक टेबल वहाँ यूज करते हैं जहाँ सर एक कॉलम में सर एक टाइप का डाटा हो, सेम डाटा। अगर उसको हमको प्रिंट कराना, जैसे में यस और नो है, तो अगर प्रिंट कराना है कि टोटल यस मतलब कितना लोन टेकन यस है, केवल हमको वही देखना है, तो उसके लिए लाइक का यूज करते हैं सर वहाँ। परसेंटेज का मतलब क्या था? सर परसेंटेज का मतलब वहाँ पे है कि मतलब जैसे में नहीं होता है सर, ये विड्थ होता है, विड्थ टाइप का करके, आपका कंसेप्ट मतलब क्लियर उसका नहीं है। उसका लेंथ सर, उसका कितना? सर उसका लेंथ जैसे में यस परसेंट लिखे तो यस का जितना भी सिमिलर टाइप का डाटा होगा वो एक लेंथ में आ जाएगा सर, एक लाइन में, इसीलिए परसेंट यूज करते हैं सर। नहीं, गलत है। या फिर सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर पता नहीं क्या है। ओके, सर लाइक लेकिन प्रेडिकेट का इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ सर हमको चेक करना होता है कि कोई स्पेशल डाटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे सर किसी टेबल में एक कॉलम है नेम का, और उस नेम में हमको चेक करना है कि कौन कौन सा नाम ए से शुरू हो रहा है या ए से खत्म हो रहा है। सर ओके, वहाँ पे हम लाइक प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। सही है, गुड, करेक्ट। Okay, let me show you the like notes. Okay, so like predicate is one type of operator. It is used in a where clause. So where के बाद ये यूज होगा to search a specified pattern. जैसे उदित ने बोला, if you want to search the names whose names is starting with the particular character, particular letter. For example, if I want to display the name whose name start with the A, या फिर किसी का नाम A से एंड हो रहा है, या फिर ए किसी के नाम में इन बिटवीन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो चेक करना है, स्पेसिफाइड पैटर्न फाइंड करना है, देन वी कैन यूज दी लाइक प्रेडिकेट. सो वी कैन यूज दी two wildcard symbol. First one is the percentage and second one is the underscore. Remember this thing, percentage and underscore. This is the game of only two wildcard character. First one is the percentage and second one is the underscore. ये दो में से आपकी कितनी सारी क्वेरी हो जाएगी, कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. फर्स्ट, परसेंटेज मतलब इट रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स में भी कोई कैरेक्टर है ही नहीं, 0 कैरेक्टर होगा. इन प्लेस ऑफ दिस परसेंटेज there will be either 0 character, maybe 1 character, or more than 1 character or multiple characters. So length will not be fixed, number of character will not be fixed. But in an underscore, the underscore represent a single character. Which single character, that we don't know, but length is fixed, only 1 character we can store on that place. If we use 2 underscore like this, let me write here 2 underscore, it means length is 2, but which character we can store? Any character. In a percentage, any length, any character. Here any character, only length is fixed, 1 character. So syntax is select columns from table where. Up to this you are clear. Then where clause के बाद कॉलम नेम आपको लिखना है, लाइक कीवर्ड लिखना है, देन पैटर्न लिखनी है. ये पैटर्न है. पैटर्न कैसे लिखेंगे हम? फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल कस्टमर्स विथ अ कस्टमर नेम स्टार्टिंग विथ ए, जिसका नाम ए से स्टार्ट होगा वो सभी कस्टमर के नेम हमें कस्टमर नेम कॉलम से डिस्प्ले करवाने हैं. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स. अप टू दिस क्लियर. देन वेयर
customer name like a percentage. It means a is the starting character. It's a fixed character. Then percentage, it means either zero character or any character or any length. It means Amit, Anuradha, Ankit, any length, but it must start with the A. So predicate will be written in a single quotation. Like is the keyword and column name is given. So ये column में से ये जो मैचिंग होगा वो आपको मिलेगा. Clear? Okay. Is there any doubt? Then I have a lots of question for you. You सर have to सर अंडरस्कोर के बाद, अंडरस्कोर हाँ अंडरस्कोर बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये आपको समझ में आ गया परसेंटेज. Yes, sir. Then type the answer of this question in your chat. Finds any values that end with a. सर टेबल नहीं दिया यहाँ पे. कोई भी ले लो, ये कस्टमर ही ले लो ना. श्योर सर. सर यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आगे आ जाएगा सर, परसेंट ए हो जाएगा. हाँ सही है, इसमें टाइप करो ना चैट में. Okay, where name like percentage a. Okay, that's correct. Okay, no need to write entire query. You can write only where name like, only predicate. Okay, for the next question, you can write only the predicate. Okay. Yes, again, I want to correct the Pankaj. Here it is mentioned a small a, so it will never give you any answer because it will match the predicate. Clear? स्मॉल ए तो स्मॉल ए ही है, केस सेंसिटिव है. कैपिटल ए लेंगे तो आपको कैपिटल ए से जितने नाम स्टार्ट होंगे उतने ही दिखाएंगे, स्मॉल ए वाले नहीं दिखाएंगे. देन इट विल बी इनकरेक्ट. इफ यू वांट टू display both capital and small, then you can use the or, where customer name like percentage a or customer name like capital percentage capital A. Clear? Now next question, I have pasted the question in your chat. Write down the answer. Write down only predicates. Like करके जो आंसर आपका है वो उतना ही लिखो. Finds any value that have or in any position. Where name like percentage or percentage. See guys, this one is the easiest query but little bit tricky, so be careful. ये लाइक प्रेडिकेट की क्वेरीज होती ही है, उसकी प्रैक्टिस करने से ही आपको पता चलेगा. और दो ही ऑपरेटर है, परसेंटेज और अंडरस्कोर. इट्स अ गेम ऑफ ओनली टू ऑपरेटर, परसेंटेज एंड अंडरस्कोर. अभिषेक तिवारी क्वेरी लिखो वो गलत है, लाइक और ओनली. उदित हैज रिटन द करेक्ट आंसर. अरमान गलत. ओम प्रकाश करेक्ट. गौरव
गलत, incorrect. Because question is given here, finds any values that have or in any position. Or in any position it means start में भी हो सकता है, end में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है. So percentage का मतलब क्या हुआ? Any number of character or any number of character. So आप ऐसा भी लिख आंसर ये भी आ सकता है, ए और फिर ए और, तो दोनों में क्या हुआ? फर्स्ट आंसर में क्या हुआ? मेरा ए पहले है और ए और लास्ट में, ए पहले है और लास्ट में, ये भी आंसर आ सकता है, ठीक है। और ए और ए, तो ये तीनों आंसर में आप देख सकते हो कि पहले में लास्ट में था, दूसरे में पहले था और तीसरे आंसर में और बीच में है। सो इंस्टेड ऑफ ए वी कैन राइट द परसेंटेज. परसेंटेज इट मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर. लेंथ फिक्स नहीं है, सो लेंथ फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि वी हैव यूज्ड द परसेंटेज. सो आपको क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है, एनी पोजीशन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, एनी पोजीशन. सो आगे भी कोई कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, पीछे भी कितने कैरेक्टर हो, हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, for that I need to again share the screen. Okay, so percentage matlab also we can say any length. Any length, any length. यहाँ पे फिक्स लेंथ हो गई सिंगल कैरेक्टर, 1 अंडरस्कोर इट मींस सिंगल कैरेक्टर. If I write here अंडरस्कोर, उसका मतलब क्या हुआ? अंडरस्कोर इट मींस ओनली सिंगल कैरेक्टर. आफ्टर दैट अमित, और इसका मतलब ये हुआ, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस ए अंडरस्कोर IT, तो इसका मतलब हुआ सेकंड पोजीशन पे एक कैरेक्टर मिसिंग है. वो कोई भी हो सकता है. कौन कौन से हो सकते हैं? अमित हो सकता है, अनित हो सकता है, अजीत हो सकता है, अजीत जे सर जी, अजीत हो सकता है. क्लियर? अभिषेक हो सकता है सर. अभिषेक नहीं हो सकता ना, नहीं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो I and T आर द फिक्स, इट इज ऑलरेडी गिवन. यहाँ पे एक ही कैरेक्टर आपका ब्लैंक है, फिलिंग द ब्लैंक्स लाइक. यहाँ पे आप देख सकते हो, आई एम पुटिंग द फिलिंग द ब्लैंक्स हियर. तो सबकी फॉर्मेट आपके प्रेडिकेट जैसे ही है, ठीक है. तो इसका मतलब अंडरस्कोर का मतलब एक ही हुआ. Suppose if I am removing this I and putting a underscore, then it will be Amit, Anit, Ajit, और A से स्टार्ट होना चाहिए दूसरा वर्ड. सपोज AB हो तो भी चलेगा, ये भी चलेगा. BBAT ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? Yes, A must, B से it start must हो गया start सर. with the A. Okay, clear? Okay. Okay. Now my question for you, you have to write the predicate for this. Now you can use the combination of underscore like this, underscore and this one. उसका मतलब क्या हुआ? नेम मस्ट बी स्टार्ट विद द ए. सेकंड कैरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए. वन कैरेक्टर का नाम नहीं हो सकता है. लेंथ कुछ भी हो सकती है. इसका मतलब ये हुआ अभिषेक चलेगा. अब चलेगा अभिषेक, अभी चलेगा, अभी
शेख चलेगा, फिर ए चलेगा कि नहीं चलेगा? सर नहीं चलेगा, नहीं इसलिए चलेगा सर, नहीं अंडरस्कोर है। चलेगा। क्यों? सर बिकॉज ये अंडरस्कोर है सर। अंडरस्कोर दिया है, अंडरस्कोर का मतलब कंपलसरी हमें यहाँ पे यस सर। लिखना है, कुछ भी A to Z कोई भी लिखना है, ठीक है? ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन दिस सेकंड पोजीशन. I'm stopping this thing and pasting the answer so I can check. Yes. Any name started with A and end with from 8. Okay. ब्रेन सर, Find. Yeah. मतलब आर सही सर। हेलो, Yes. Find any values that have R in the second position. So answer of Om Prakash is correct, Arman, but we are not finding the answer. We have to write the predicate. So answer of Abhishek Tiwari is dash underscore R percentage is correct. Underscore R percentage is correct. Predicate लिखना है पंकज. Yeah, it's correct. Sumant correct. I am not checking your whole syntax. I am checking your only predicate. Clear? Okay. अभी जो मैंने एग्जांपल करवाए उसमें सभी कॉम्बिनेशन आ गए, उससे ज्यादा कुछ कॉम्बिनेशन मोस्ट ऑफली नहीं हो सकेंगे. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट. फाइंड एनी वैल्यूज that start with A and are at least 2 character in a length. At least 2 character. Udit Raj, I am not getting perfectly. You can put the space in between 2 underscore. Find any values that start with A and are at least 2 character in a length. Read the question properly. Read the question properly. All of you read the question properly. Find any values that start with A and are at least 2 characters in a length. So let's start with the first one. Udit, answer is incorrect. Pankaj, incorrect. Arman, incorrect. Saurabh, incorrect. Gaurav, incorrect. Abhishek Tiwari, incorrect. Now Udit is correct. A underscore percentage, because A is our first character and it is fixed. Underscore is our second character, any character. तो मिनिमम एटलीस्ट 2 कैरेक्टर हो चुके हैं. परसेंटेज में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. नाउ पंकज इज करेक्ट, ओम प्रकाश इज करेक्ट, अरमान इज आल्सो करेक्ट. सो एटलीस्ट 2 ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आएंगे. सर इसका एग्जांपल तो डबल ए हो सकता है, ए भी हो सकता है, सी हो सकता हाँ, कुछ भी हो सकता है. है सर. डबल ए हो सकता है, डबल बी हो सकता है, अरमान हो सकता है, फिर अभिषेक हो सकता है, आद्या हो सकता है, आराधना हो सकता है. एटलीस्ट 2 बोले, मिनिमम 2 होने चाहिए. मैक्सिमम तो परसेंटेज हमने यूज किए तो एनी नंबर ऑफ हो सकता है. अभिषेक होगा, अमिताभ होगा, कुछ भी हो सकता है. ऐश्वर्या होगा, आराधना होगा, आद्या होगा. अमिताभ होगा. बोला तो सही में अमिताभ होगा. Next, find any values that start with A and are at least 3 character in a length. Now your answer is correct. A underscore underscore, it means 3 character, 3 position are fixed.
And percentage, it means any character, any length. Okay. सर Now अंडरस्कोर के read the बाद question. सर Underscore के अंडरस्कोर के बाद स्पेस रिक्वायर्ड है या नहीं है? क्योंकि उदित और अभिषेक और यारमान का आंसर कंपेयर कीजिए तो स्पेस आ रहा है ना अंडरस्कोर के बीच में, तो वो वो रिक्वायर्ड है मुझे अंडरस्केर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप दोनों कंटिन्यूअस अंडरस्केर रख रहे हो ना, तो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले विजिबल नहीं हो रहा है कि आपने आई कैन नॉट सेपरेट वेदर इट इज वन अंडरस्कोर और टू अंडरस्कोर, दैट्स व्हाई। सर मेरा देखिए तो सर स्पेस सर सौरभ नहीं रिक्वायर्ड है। नहीं, स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, लेट मी टाइप द आंसर, ए अंडरस्कोर अंडरस्कोर परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि दोनों अंडरस्कोर साथ में ना, तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कितने अंडरस्कोर है, इसलिए मैंने Yes, बोला sir. कि आप ये लिखो ए अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर स्टार। एग्जाम में आपको स्पेस नहीं लिखना है, ठीक है, ये गलती मत करना। अभी मतलब अब चैट में करने के अभी चेट के लिए इट्स ओके, चेट के लिए सेकंड वन इज ओके, बट एग्जाम के लिए सेकंड वन इज इनकरेक्ट। यस ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, sir, any position at least 10 या 12 character, how is possible or and not? Yes, definitely it is possible. 10 character at least, so we have to put 10 underscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then we can use the percentage also in a both side, because starting character is not mentioned and ending character is not mentioned, so you can use the predicate like this. तो मिनिमम कंपलसरी, सपोज परसेंटेज की जगह मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ दोनों के जगह, तो मिनिमम 10 अंडरस्कोर है तो 10 कैरेक्टर विल बी देयर, सो एटलीस्ट 10 लेंथ तो हो गई। ठीक है, इफ आई एम पुटिंग समथिंग इन प्लेस ऑफ परसेंटेज, देन लेंथ विल बी इंक्रीज, डेफिनेटली एनी पॉसिबिलिटी इज पॉसिबल हियर। सर अगर हम परसेंटेज दोनों साइड में कभी कहीं नहीं देते हैं तो क्या तो फिक्स लेंथ हो गई। फॉर एग्जांपल मैं उस पे भी आता हूँ, हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दे दो पहले। Finds name any values that start with A and ends with O. अभिषेक तिवारी, कौन सा आंसर सही समझू, पहले वाला दूसरे वाला? फर्स्ट वन, ओके। करेक्ट आंसर इज ए परसेंटेज ओ। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग विथ ए एंडिंग विथ ओ, इट मीन्स बीच में कोई भी कैरेक्टर हो सकेगा। पंकज और गौरव में क्या होगा, ए परसेंटेज ओ परसेंटेज, इट मीन्स लास्ट कैरेक्टर कोई भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ एनी कैरेक्टर इज fixed, then you must have to write down that character at particular position. Clear? Okay, now let's come to your queries. Okay, now we are going in a reverse manner. I am writing the predicate, you have to unmute your mic and tell me the question. Okay,
Okay. Now tell me the question. What will be the output of this? Just Abhishek. सर फिक्स नंबर सर इसका। क्या कितना सब कुछ डिस्क्राइब करो। सर ए के बाद एक कैरेक्टर आएगा और एम के बाद दो कैरेक्टर, उसके बाद कुछ नहीं सर। नहीं, I am not getting you. सर यस सर। सर जैसे मैं ए टी एम डबल ए ले लीजिए। AT एम डबल ए। MAA। आप ठीक है चलो। I get back to you. सौरभ। यस सर। फर्स्ट कैरेक्टर ए फिक्स है सर। या उसके बाद सेकंड कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, थर्ड कैरेक्टर फिक्स है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है उसके कितने आगे। कैरेक्टर होंगे? सर वो तो मतलब दो ही फिक्स है, उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है सर। नो, इनकरेक्ट। यस सर ओम प्रकाश। सर टोटल 5 कैरेक्टर सर। या लेंथ सर फिक्स है कि पांच करेक्टेड होंगे सर यस इसमें। गुड। टोटल 5 होगा सर, जिसमें 2। या दैट्स गुड। यस The length is fixed. यस Here length is यस fixed. यस सर। 5 Yes, character long and name must start with the A. ए और थर्ड वन इज एम। दूसरा कैरेक्टर कोई भी हो कुछ सकता भी हो है। सकता है। थर्ड कैरेक्टर एम होगा। let me यस सर। yes I got your answer. Yes. Okay, let me explain. Yes. Let me explain. फर्स्ट कैरेक्टर ए ही कंपलसरी होना चाहिए, दूसरा कोई और भी हो सकता है, तीसरा कैरेक्टर एम ही होना चाहिए बिकॉज इट इज गिवन फिक्स। क्लियर? फोर्थ एंड फिफ्थ कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेंथ ऑफ दिस नेम इज फिक्स। Find any values which starts with A and has M at third position and has at most 5 character. Yes, Udit, your question is perfectly correct. And answer of this question is Arman. I generate the question from the name of Arman. First character is A, third character is M, and length of this is 5. Clear? Okay. Tell me the answer of this. Percentage RAV. May I, sir? May I? सर हाँ, यस सुमन। तो इसमें फर्स्ट आगे कुछ भी कैरेक्टर हो सकता है और पीछे से 3 कैरेक्टर फिक्स्ड है, तो ये अनलिमिटेड होता है, जैसे सौरभ, गौरव, कुछ भी। Okay, simply answer of this question. सर Yes, सर एंड विथ आरएवी। yes, that's it. सर That's it. ज्यादा कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना ही बोलना है, एंड विथ RAV। आगे की लेंथ कुछ भी हो सकता है, जैसे सौरव, गौरव, लेंथ फिक्स नहीं है। भैरव। यस, लेंथ फिक्स नहीं, क्योंकि वी हैव यूज्ड द परसेंटेज। सो सौरव, गौरव, भैरव कुछ भी हो सकता है। क्लियर? Now, is there any query Yes. regarding this? Any other idea which comes in your mind, and do you want to ask? No sir. Yeah, it's Gaurav. क्लियर सर। All clear? Any combination you can make the नो सर। answer. Clear. Okay. अरमान अली, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा शायद। क्यों मतलब नहीं होगा? क्योंकि सर मिडिल में सर इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर हो सकते हैं। या करेक्ट, इसका कोई मतलब ही नहीं है। या उदित राज आपने जो दिया उसका मतलब है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अरमान अली एंड उदित? आंसर। सो फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन अरमान। फर्स्ट कैरेक्टर, परसेंटेज, थर्ड कैरेक्टर, उसका मतलब क्या हुआ? बीच में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, either 1 2 3, so there is the no meaning of first underscore and last underscore. Clear, Arman? It is included in a percentage. Okay, now come to the Udit. Percentage underscore percentage, उसका क्या मतलब हुआ? At least one character must be there. At least one character, either A, B, C, whatever. A हो सकता है, ABC हो सकता है, whatever. एक कैरेक्टर तो कंपलसरी में होना ही चाहिए। क्लियर?
इफ आई एम राइटिंग परसेंटेज ओनली, उसका मतलब क्या हुआ? सर एनी नंबर, एनी कैरेक्टर सर, अभिषेक, भी? अरमान, सुमंत, कुछ भी सर। मैं कुछ नहीं लिखता तो? सर कुछ नहीं लिखता तो सर इम्प्टी स्पेस रहेगा सर। तो एम्प्टी रहेगा, तो विल इट वर्क? इट विल नॉट वर्क। यस सर, जीरो हाँ, जीरो वैल्यू जीरो भी हो वैल्यू भी हो सकता है सकता सर। है, लेकिन कॉलम में तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वैल्यूज तो दी ही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? वो 20 एटलीस्ट एट मोस्ट ओनली वन। वन कैरेक्टर सर। सर एटलीस्ट नहीं, मतलब एटलीस्ट नहीं, ओनली वन कैरेक्टर। ओनली वन। ओनली वन कैरेक्टर सर। ओनली वन, एटलीस्ट नहीं, ओनली वन कैरेक्टर। यस, यस। ओके, गुड। ओके, अरमान अली पेस्टेड अंडरस्कोर परसेंटेज एस, उसका कोई मतलब ही नहीं। अंडरस्कोर परसेंटेज का मतलब, परसेंटेज इट इंक्लूड्स द अंडरस्कोर। We can say that underscore is the subset of percentage. So we can make the combination of this, but consecutive we cannot use. Just like previous question, sir. What? In between S, सर पहले वाला क्वेश्चन था सर कि अंडरस्कोर आपकी आवाज नहीं आ रही है ओम प्रकाश। सर पहले वाला क्वेश्चन भी सर सेम ही था ना, कि मतलब अंडरस्कोर था और उसके बाद परसेंटेज था और एस था, तो इसमें भी सर बीच में कितना भी आ सकता है सर। सेम ही आ बात, सकता है, आ सकता है। सिर्फ एस दिया है सर अंडरस्कोर की जगह पे। सर या सर यहाँ पे जो करेक्टर दिया है, जैसे कि कोई भी हम करेक्टर ले लिए, ठीक है, तो करेक्टर की जगह पे हम डिजिट पुट करके सर निकाल सकते हैं कोई भी नंबर। हाँ, निकाल सकते हैं। सर कैसे? जैसे 1 अंडरस्कोर परसेंटेज, इसका क्या मतलब हुआ? इट शुड स्टार्ट विद द 1 अंडरस्कोर के बाद परसेंटेज। अंडरस्कोर का कोई मतलब हुआ क्या हुआ? मतलब 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए। परसेंटेज 3 कैरेक्टर हो, जो भी हो, इट्स ओके। You can take a number. सर इसमें जो है डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट सर इसमें नहीं हो सकता है सर, कुछ भी हो सकता कैसे? है सर, कुछ भी हो क्या? सकता है सर। जैसे में 1 दिए हैं तो 2, 5, 3 ऐसे, जैसे कि 2 करेक्टर है तो हो सकता है सर 2 या 3 कुछ भी। हाँ, तो हो ही सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ओके सर। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट नंबर के टेबल में हमारा ये लिया है ना, A001, A001 लिया है, तो मुझे इसका प्रेडिकेट बनाना है, तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि A अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर 1। इसका क्या मतलब हुआ? A 0 0 की बजाय 3 4 और लास्ट एंड, इट शुड एंड विद द 1। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। Any सर character क्या, and any digit. But सर generally in a name, yes. can we take like a number sir, as it is 1%? 1%, yes, लिख सकते हैं। जो भी आपको मैच करवाना है वो लिख सकते हैं। कैरेक्टर इट मीन्स डिजिट और कैरेक्टर। जनरली वी आर टेकिंग दी कैरेक्टर। सर बट आप नंबर परसेंट से भी मैच करवा सकते हो, कर सकते सर हो, क्यों नहीं परसेंट कर will, सकते? sir percent would only give character values. Who told you? No, no. नो सर। Who told you? सर ऐसा कुछ नहीं है। Okay, let me check. Abhishek. नहीं, let me check now. Select a star from account. Okay, let me share the screen so you can get, and we can clear at least each and everything. Right now, screen is not sharing. Select star from account where account SCC number है ना, SCC number like a percentage. पहले हम ये रन करेंगे and we'll check it whether it is working or not. So yes, it is working. Now
I am writing A00 A __1. So it means A से स्टार्ट हुआ वैसा आया, मिडल पार्ट में कुछ भी हो सकता है एंड एंड मस्ट विद दी 1. और अब मैं ये करूंगा आपका जो क्वेरी है, इंस्टेड ऑफ दैट %1 आ गया. So it is not like that. You cannot use the digits instead of plus. सर स्लैश ऑन instead of करिएगा, स्लैश ऑन Slash करिएगा. one? यस सर. समझ नहीं पाया मैं. सेमीकोलन छूट गया सर सर सेमीकोलन की जरूरत सर एपेक्स में नहीं है. अंडरस्कोर सर अच्छा सॉरी सॉरी, अंडरस्कोर, सॉरी सॉरी. ही वांट टू से दैट अंडरस्कोर. ओके. यहाँ पे Thank you, सेमीकोलन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि विदाउट सेमीकोलन पर्टिकुलर फॉर दिस apexoracle.com it will work. नो डेटा फाउंड बिकॉज अकाउंट नंबर में ऐसा कोई डेटा ही नहीं है. अगर मैं ऐसा करूंगा 1 2 and 3 देन इट विल वर्क, क्योंकि अकाउंट टेबल में ऐसा कुछ है ही नहीं है सिंगल वाला. ओके ओके. ठीक है सर अंडरस्कोर 00 अंडरस्कोर. ओके जस्ट डबल अंडरस्कोर अंडरस्कोर 00 अंडरस्कोर 00 अंडरस्कोर. यस. व्हाट विल बी द आउटपुट? टेल मी. सर A001 यही आएगा सर. गलत. सारे सारे आएंगे क्योंकि आप देख रहे हो हमारा स्टार्ट ए से हो रहा है और एंड 1 2 3 4 से हो रहा है. इन बिटवीन सभी में Totally. 00 तो है ही. देखो A002 A004 A003 A001 A005 like this. Clear? Now any combination do you want to try? Okay, let me write like this. Select star from account where city like m %. So m से स्टार्ट होते हुए सभी देंगे, लेकिन स्मॉल m से कोई है ही नहीं. कैपिटल M मुझे देना पड़ेगा. मेहसाना सर. तो मेहसाना 2 है तो आ गए पटेल रमेश और पटेल जिगर. क्लियर? फिर मुझे कुछ ऐसा देना है कि व्हाट नेम लाइक. ओके नेम लाइक व्हाट? पटेल जिगर में. पटेल जिगर दिखाना है. यस सर. प्रेडिकेट क्या? प्रेडिकेट बोलो आप. अंडरस्कोर ATE अंडरस्कोर A TTE अंडरस्कोर. ओके देन फिर जितना है अंडरस्कोर परसेंटेज. फिर परसेंटेज लगाओ कि नहीं लगाओ? लगा दीजिए सर. स्पेस के बाद सर दोनों ही करते. इसको मैं लगाया नो डेटा फाउंड बिकॉज पटेल Yes, करके sir. कोई नेम ही नहीं है. जैसे मैं यहाँ पे परसेंटेज लूंगा Yes, तो sir, इसका मतलब percentage. क्या हुआ? पटेल जिगर आएगा, पटेल रमेश आएगा. ठीक है, समझ में आया? यस सर. यस सर. ओके. नाउ इज देयर एनी डाउट और शुड आई स्टॉप? सर जो परसेंट है वो सर स्पेस भी कंसीडर करता है. हाँ करता है, स्पेस भी कंसीडर करेगा. इसलिए तो परसेंटेज में क्या मैंने नोटपैड में दिखाया, 0 कैरेक्टर, 1 कैरेक्टर और multiple, yes, sir. मल्टीपल कैरेक्टर. ओके So सर. it includes the white space also. सर अगर चेक करना हो कि कौन कितना रुपया लिया है तो उसका कैसे करेंगे सर? क्या? जैसे 50,000 है सर तो इसलिए सर हाँ. कैसे करेंगे? 50,000 है तो वहाँ पे बैलेंस डाल लेंगे. यहाँ पे शो नेम करना है, चाहता है. नेम है ना, क्या वहाँ पे बोलना क्या बैलेंस चाहते डालेंगे. हो तुम? सर जैसे ये हम पटेल शो करवाए ना वैसे ही वो बैलेंस शो करवाना चाहता है सर. बैलेंस में कितना डिजिट है वो शो करवाना चाहता है वो. तो वो तो कैसे होगा? सर वेयर के बाद हो जाएगा अमाउंट. हाँ तो अमाउंट नहीं फिर सर नेम बैलेंस हो जाएगा सर. बैलेंस. हाँ बैलेंस हो जाएगा.
एंड देन फाइव हमको के जो बाद प्रेडिकेट लिखना है वो यहाँ पे लिख दो। यस सर हो जाएगा। 5 के साथ परसेंटेज दे सकते हैं तो। के बाद परसेंटेज लगा देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? हेलो सर। हाँ, तो प्रेडिकेट में सर 5 के बाद परसेंटेज लिख सकते हैं सर? लेट मी सर राइट हमको 5%. यस सर। Run it. जी सर। You will get 50,000. यस And if we have a 5 lakh, then it will come. इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो सभी? क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसका सीधे से आंसर पेस्ट कर रहे हो चैट में। ऐसा मत करो, ये ले यहाँ पे रन कर दो और बस बाद में आप आंसर पेस्ट करना। थैंक यू सर। तो आपके लिए वो इजी रहेगा, ठीक है? Okay, now I am stopping this screen. Now, is there any combination is remaining or anything else? No, sir. Okay. Let's start the practical number 3. Okay, again I have to share this screen. So, to start the practical 3, you need to remember previous concept that is covered in a lecture session. Constraint, different types of constraints that you need to remember. Yes, sir. Unique, null, correct. Yes, primary key, foreign key, not null, check constraint. Yes. This all constraint will used in this. So in a practical 3, you can find the table. So first of all, Sir. Yes. सर बजाय पूरा क्वेरी लिखने के हम इसी को अपडेट नहीं कर सकते सर? किसी को सर टेबल अकाउंट में जैसे सर अकाउंट को हमको प्राइमरी की एक बनाना है सर। कर सकते क्योंकि लेकिन सर अभी उसमें भी तो सर क्या प्राइमरी की ही ऐड करना रहेगा ना? हाँ, प्राइमरी की ऐड करना रहेगा सिर्फ। वो भी अकाउंट करवाएंगे, नंबर वर्कर 25 प्राइमरी की वो भी करवाएंगे। लेकिन राइट नाउ what we will do, first we will drop that table. पहले वाला जो अकाउंट टेबल है वो पूरा ड्रॉप कर देंगे, डिलीट ही कर देंगे। फिर से एट द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन हम कैसे इंक्लूड करेंगे वो पहले सीखेंगे। और दूसरा जो आप बोल रहे हैं वो आफ्टर क्रिएशन ऑफ द टेबल, इफ वी वांट टू इंक्लूड एनी particular constraint, then we can add that constraint in a particular existing table. तो अभी हम पहले टेबल फिर से नया क्रिएट करेंगे। तो इसलिए मैंने नोटपैड बनवाई थी फर्स्ट में कि आप सब नोटपैड अच्छा वर्ड फाइल अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि इंसर्ट वाली जो सिंटेक्स है वो तो कॉमन ही रहेगी, सिर्फ क्रिएट टेबल की सिंटेक्स चेंज होगी। टेबल कॉलम नेम सेम है, टेबल नेम भी सेम है, तो टेबल नेम दो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, पुराना वाला डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं है। डेटा तो इसमें भी हम सेम इंसर्ट करने वाले हैं। सो let's understand first all this thing. Column name, account number, it is given as a underscore. It means it's a primary key. Then name, city, balance, loan taken, data type and size are given here. And last column is attribute. Attribute, it means constraints are given here. First constraint is on account number. Account number पे constraint क्या है? It is a primary key. तो प्राइमरी की हम लगाएंगे अकाउंट नंबर पे। तो प्राइमरी की किसको बोलते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाइड की विच विल नॉट बी नल। वो नल कभी भी नहीं हो सकती। कंपल्सरी वी हैव टू गिव दी एनी वैल्यू इन पर्टिकुलर सेल। सेकंड कंस्ट्रेंट स्लैश करके दिया है, फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विथ ए। फर्स्ट लेटर मस्ट स्टार्ट विथ ए, इसका प्रेडिकेट क्या होगा? परसेंटेज है क्या होगा? सॉरी सर A%, सर कैपिटल A% होगा, लाइक कैपिटल A% होगा। तो ऐसा होगा, वही हमें चेक करना है कि जो हम एंटर करेंगे वो ऐसा ही हो तो ही एंटर करने के लिए अलाउ करेंगे, अदरवाइज इट विल डिनाई। आई विल शो यू ऑल दिस थिंग, जस्ट राइट नाउ यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। सो इसको हम चेक कंस्ट्रेंट बोलेंगे कि ये कंडीशन चेक करनी है।
चेक की करेंगे ये इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन वी इट विल अलाउ टू एंटर। नाउ सेकंड कॉलम इज नेम। सेकंड कॉलम में हमने क्या कंस्ट्रेंट लगाया, नॉट नल। इट मींस नेम विल नॉट बी नल, नेम नल नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहेगी। सेम लाइक सिटी, सिटी में कंस्ट्रेंट नॉट नल है तो सिटी भी कुछ ना कुछ तो हमें डालना ही पड़ेगा। फिर बैलेंस, बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500, it means if you enter 450 then it will not allow you to enter this much amount। क्लियर, 500 डालोगे तो अलाउ करेंगे, 500 से ज्यादा डालोगे उस कॉलम में बैलेंस में तो अलाउ करेंगे। ठीक है, सो दैट इज कम्स अंडर अ चेक कंस्ट्रेंट बिकॉज वी हैव टू चेक द कंडीशन। कंडीशन चेक करनी है तो चेक कंस्ट्रेंट आएगा। नेक्स्ट ये क्या है, लोन टेकन। उसमें क्या कंस्ट्रेंट दिया है, वैल्यूज नो कोमा यस। तो उसका मतलब क्या हुआ, वैल्यूज आपकी दो ही होनी चाहिए, इधर नो और यस। तो वो हम चेक कंस्ट्रेंट से ही चेक करेंगे। ठीक है, ओके। लेट मी गिव यू द एग्जाम सिंटैक्स ऑफ द क्रिएट टेबल। ये कंस्ट्रेंट सारे आपने रिफर करने हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे जाते हैं अकाउंट टेबल में। सो क्रिएट टेबल अकाउंट, ओके। लेट मी गिव यू वन इंस्ट्रक्शन टू यू। दोनों सिंटैक्स सेम ही है, जो पहले हमने प्रैक्टिकल 1 में किया और उसमें किया। फर्क क्या है, सिर्फ कंस्ट्रेंट ऐड करना है। सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम अकाउंट इज देयर, फिर ये कॉलम नेम है, ये डेटा टाइप एंड साइज है। दूसरी कॉलम ये है, ये डेटा टाइप एंड साइज है। तीसरी कॉलम सिटी है, डेटा टाइप एंड ये है। ठीक है, नाउ वी आर एडिंग द कंस्ट्रेंट। अकाउंट नंबर वेरके टू 5। पहली कंस्ट्रेंट क्या था, प्राइमरी की, तो हमने यहाँ पे प्राइमरी की लगा दिया। देन आफ्टर कोमा, दूसरा यहाँ पे हम नहीं लगा सकते और वी विल चेक इट। तो दूसरा कंस्ट्रेंट क्या था, नेम शुड स्टार्ट विद द ए। सो दूसरा कंस्ट्रेंट हमने लास्ट में कोमा करके लगा दिया, चेक अकाउंट नंबर लाइक ए परसेंटेज प्रेडिकेट। ठीक है, फिर दूसरी कॉलम पे आए, दूसरी कॉलम पे क्या कंस्ट्रेंट था, नॉट नल। तो नॉट नल, सर यस सर उसी के साथ नहीं लगा सकते हैं उसको, वो हम चेक, अकाउंट 8% वो हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे, विल इट वर्क और नॉट। ओके ठीक है, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर में नहीं वर्क कर रहा है, तो अभी मैं मना कर रहा हूँ और आई सजेस्ट यू टू राइट इट एट द एंड। ठीक है, नेम में कंस्ट्रेंट है नॉट नल, तो नॉट नल यहाँ पे लिख दिया। सेम सिटी में सिटी डेटा टाइप एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट, देन कोमा, बैलेंस 10,2। यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं चेक कंस्ट्रेंट, लेकिन मैं यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ कॉम्बिनेशन करने के लिए, समझने के लिए। क्या लिखा, चेक बैलेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500। फिर लोन टेकन में कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है चेक लोन टेकन इज इक्वल्स टू नो और लोन टेकन इज इक्वल्स टू यस। रिमेंबर दिस थिंग, नो इज इन कैपिटल, यस इन कैपिटल, तो उसको एग्जैक्ट मैच होगा तो ही अलाउ करेंगे। ठीक है, ओके। लेट मी रन दिस थिंग। Sir, यस sir, if we put check constraint in last, then it is इट विल वर्क, यस। मतलब कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं ना, यस check constraint not यस null. यस Okay, यस sir. Okay. Thank you. Yes. Okay. My entire screen is visible or only that PDF is visible? Entire screen, sir. Okay. In Apex, I have already created the account table or account one. Let me check the tables. Account one. Okay. Let me drop first. Drop table account one. My original table I am keeping same as it is, or I can delete it. Okay, let it delete. Table drop. Okay, now I am copying this syntax. Now I am running it. So table created.
Now how we can check the constraint? ये constraint आया है कि नहीं आया वो कैसे चेक करें? सो प्राइमरी की में टेबल पे जाओ और यहाँ पे देखो प्राइमरी की यहाँ पे नलेबल लिखा है, अकाउंट नंबर नल नहीं हो सकता है, नेम नल नहीं हो सकता है, सिटी नल नहीं हो सकता क्योंकि नॉट नल कंस्ट्रेंट चेक किया सेट किया है। बैलेंस नल हो सकता है इसलिए यस लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंस्ट्रेंट। नाउ प्राइमरी की आपको Sir, पता है। हाँ sir, here condition is not applicable. यस, कंडीशन यहाँ पे नहीं लिखी है। कंडीशन कहीं पे भी आपको नहीं पता चलेगा कि क्या सेट किया है, ठीक है। कंडीशन आपको इजीली पता चल जाएगा तो आप क्रैक कर लेंगे ना, हैक कर लेंगे पूरा। तो कंडीशन आपको यहाँ से, कंडीशन किसको पता चलेगा? जब whenever you Sir, create that table सर प्राइमरी की में कंडीशन का कोई जरूरत नहीं है, नॉट नल का कोई। नहीं, प्राइमरी की इटसेल्फ और नल नॉट नल ना। प्राइमरी की जब हमने सीखी तब मैंने बोला था ना प्राइमरी की नल नहीं Yes, हो sir. सकती है, Yes, यूनिक ही है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स चेक वेदर इट विल वर्क और नॉट। So I am inserting this thing. Okay, पटेल जिगर ये हमने पहले इंसर्ट किया था। अगर मैं ये इंसर्ट करूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा। लेट मी रन दिस, ठीक है। ये वन रो इंसर्टेड, इट मींस ऑल द कंडीशन आर मेट विथ आवर ऑल कंस्ट्रेंट। नाउ लेट्स चेक। पहला कंस्ट्रेंट क्या था? यहाँ पे मैं बी लिख रहा हूँ, ठीक है। विल इट अलाउड? नो। तो यहाँ पे आप एरर देखो, देखो क्या लिखा है, चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड। इट मींस यहाँ पे आपने क्या लिखा था? यहाँ पे आप देखो चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड क्या लिखा है, अकाउंट लाइक ए परसेंटेज। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? बी से दे रहे हैं, तो वो अलाउड नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा कंस्ट्रेंट वो टेबल पे क्या था? नल का, तो मैं यहाँ पे नल लिख रहा हूँ, नल। नल अलाउ करेगा? देखो, कैन नॉट इंसर्ट नल इनटू दिस। क्यों? बिकॉज इट्स अ प्राइमरी की। क्लियर? So let's keep it as it is and come to the second column. Second column में क्या constraint check किया था हमने? Not null. It means null नहीं रख सकते। Let's check it. Null करके cannot insert null into this. Null नहीं enter कर सकते, ठीक है। सेम सिटी में ऐसा दिया था, सिटी में null, तो null में रख के चेक करता हूँ। You have to check it one by one at a time. If you do all constraint, if you are going to check all constraint at one time, then you will be confused. That's why I am going one by one. So यहाँ पे देख लिया आपने, cannot insert null into. Okay, now come to the balance. Balance की condition क्या थी? क्या थी balance की? Yes, balance greater than equals to 5. पुट कर, यस सर, यहाँ पे पहले null put कर सकते, pull कर, यस सर, नल पुट हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। चलो मैंने कर दिया। यूनिक कंस्टेंट यहाँ इट मींस A001 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मैं A002 कर देता हूँ, इसलिए नहीं हुआ। हो गया, नल हो गया। अब चेक करते हैं यहाँ पे 450 और यहाँ पे 3 कर देता हूँ। सो यूनिक कंस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। बैलेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 500, सो नहीं लेगा सर। इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट दे दिया एरर, ठीक है। अगर मैं 500 करूं तो बेटर इक्वल है तो चलेगा, ठीक है। लेकिन आई एम पुटिंग इक्वल है 5000, सो इट विल वर्क, होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यस। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट हमारा क्या था? लोन टेकन आइदर नो और यस। सो लेट्स डू अदर देन नो, यस और नो। बीएफ, बीएफ लेगा कि नहीं लेगा? नहीं लेगा। चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड, चेक कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है। नाउ यस और नो ही होना चाहिए। लेट मी राइट नो। विल इट वर्क और नॉट? सर 003 ये होगा कि नहीं होगा? होगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा, नहीं होगा। चेक कंस्ट्रेंट वायोलेटेड बिकॉज अब देखो यहाँ पे अच्छे से
all नो कैसा है, कैपिटल है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, स्मॉल all है। में इफ आई एम डूइंग n capital and o small, then it will not work. no Again, sir, check constant violated. Okay, both of capital. so both should Yes be capital. yes sir. Okay, unique constant, it means यहाँ पे हमको 4 लेना पड़ेगा। Okay, one row inserted. Now got it? Yes sir. Okay, let me again drop this table and check whether we can put the check constant and with the primary key or not. And let me copy this thing. Let's check whether it will work or not. चेक कांस्टेंट मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लगा देता हूँ। ऐसे ही बोल रहे थे ना आप लोग? Clear? Okay, let me run it. Yes, definitely it will work. Table is created. So you can use the check constant at column level also. इसको हम कॉलम लेवल बोलेंगे क्योंकि कॉलम के साथ हमने लिखा है, और लास्ट में देंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, टेबल लेवल। तो लास्ट में हम कोमा करके यहाँ पे कितनी सारी कंडीशन दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। क्लियर? नाउ इज देयर एनी डाउट? No, sir. Okay, any other students? Any other? No, sir. Okay, No, sir. so this is the today's session. So we will start the practical 3 in our next lab. If it is possible with you, if you can perform the practical 3, if you can create the table, then you can do it. Otherwise, we will start performing practical 3 in our next lab. You can at least you can create this table account by yourself. Clear? Sir. Yes, sir, we will try. Done. So right now I am stopping this thing.